Assalamu alaikum. I am Sumbul Zahra from Sir Syed Government Girls College. As per the direction of Secretary Education, Director General Colleges, and under the supervision of our worthy principal Professor Khalda Parveen, today I am going to deliver lecture on magnetic flux and magnetic flux density, force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field, force on a moving charge in a magnetic field, motion of charged particle in an electric and magnetic field. But before this, I would like to inform all students to kindly subscribe this YouTube channel, which is Sin College Lecturers YouTube channel. So it is for your benefit. Inform to all and do subscribe this YouTube channel. Coming to our topic, which is magnetic flux and magnetic flux density. सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स अगर याद हो कि फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया इज़ नोन एज फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हों तो उन्हें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे, और अगर यही लाइंस मैग्नेटिक फील्ड में हों तो उन्हें हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक lines passing through a certain area, which we denote by phi b. So phi b is the dot product of b dot a. Dot product remove होगा तो ba cos theta. Theta is the angle between magnetic field lines and vector area A. Let us consider an area A which is placed perpendicular to the magnetic field lines. So, flux is maximum because maximum number of lines इस area में से pass हो रही हैं. Vector area A is perpendicular to surface which is parallel to magnetic field lines. So, flux will be maximum. When vector area is parallel to magnetic field lines, then flux will be maximum. तो phi b इक्वल्स टू बी ए कॉस 0 डिग्री अगर आप रखेंगे तो phi b इक्वल्स टू बी ए मीन्स मैक्सिमम फ्लक्स विच इज़ अ कंडीशन ऑफ maximum flux. If area is parallel to the magnetic field lines, so there will be no lines passing through the area. So area is perpendicular to the magnetic field lines. Then phi b equals to ba cos 90 degree. That is phi b की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 0, which is the condition of minimum flux. Coming to take the unit of magnetic flux, which is phi b, taking the condition of maximum flux, phi b equals to ba. तो b has a unit Newton per ampere meter and area has a unit meter square. So magnetic flux has a unit Newton meter per ampere, which is equal to Weber. Now take the condition of magnetic maximum flux, which is phi b equals to ba, and take the value of b magnetic field. तो b equals to phi b upon a. किसी चीज़ को अगर हम यूनिट के ज़रिए डिस्क्राइब करते हैं तो उससे डेंसिटी भी कह सकते हैं, विच इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज़ ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन. So magnetic induction या magnetic flux density is flux per unit area of surface perpendicular to B, whose units is Weber per meter square. Now topic force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field. फोर्स एक्सर्ट होती है अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं. नोट करने के लिए कि फ़ोर्स की क्या वैल्यू होती है, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं. हमने कंसिडर किए हैं 2 कंडक्टिंग रेल्स और एक कंडक्टर इसके ऊपर रख दिया है, एंड दिस कंडक्टर कैन मूव इन राइट एंड लेफ़्ट डायरेक्शन अगर इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होती है. और इस सिस्टम को हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, जो कि एक हॉर्स शू मैग्नेट से हमने जनरेट की है. दिस मैग्नेटिक फील्ड इज़ राइट एंगल टू द कंडक्टर. अगर हम इन रेल्स को कनेक्ट कर दें बैटरी के साथ तो कंडक्टर मूव करेगा जैसे ही वायर में से करंट पास होगा. इफ़ करंट इज़ पासिंग इन द वायर देन देयर आर 2 मैग्नेटिक फील्ड. वन इज़ बिकॉज ऑफ हॉर्स शू मैग्नेट which is in the upward direction, and the second magnetic field वो जो कि चार्जेस मूव कर रहे हैं कंडक्टर में,
दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगी, जिसकी वजह से फोर्स जनरेट होगी कंडक्टर पे, जो कि कंडक्टर को मूव कराएगी। वो फोर्स जो है डिपेंड करेगी आपके साइन ऑफ अल्फ़ा पे। मीन्स वो एंगल जो कि कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान बन रहा है। मीन्स अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन conductor and magnetic field. So अगर conductor is placed perpendicular to the magnetic field, there will be no force. If conductor is placed parallel to the magnetic field lines, force will be maximum if it is placed perpendicular to the magnetic field lines. Now जो फोर्स आपने प्रोड्यूस जनरेट हुई है कंडक्टर में, वो है आपके करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन्स अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, उतनी ही करंट फ्लो करेगा जितनी उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रही है। एंड फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर also, and force is directly proportional to the magnetic field which is external magnetic field because of the horseshoe magnet. अगर हम इन सबको कंबाइन करें तो आपके पास फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई एल बी साइन ऑफ अल्फ़ा। मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, external magnetic field, length of the conductor and the angle between the conductor and the magnetic field, which is the magnitude या vector form of force on a current carrying conductor in a uniform magnetic field, which is F equals to I BL sin of अल्फ़ा। नाउ अब हम डिफ़ाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। अगर हम कंसिडर करें लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अगर हम 1 मीटर, करंट उसमें से 1 एम्पियर पास कर रहे हैं और एंगल जो है वो 90 डिग्री है, कंडक्टर इस 90 डिग्री, तो आपके पास F इक्वल्स टू आई बी एल साइन अल्फ़ा। तो आपके पास जो फोर्स की वैल्यू निकलेगी, वो फोर्स की वैल्यू निकलेगी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन। उसको आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं एज द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर placed at right angle to the magnetic field when current of 1 ampere is passing through it. Taking out the unit of B, which is B equals to F upon ILB sin of alpha, means 1 Newton divided by 1 ampere 1 meter into sin of 90. So B equals to 1 Tesla or 1 Newton per ampere meter. The strength of the magnetic field is said to be 1 Tesla if it exerts a force of 1 Newton on a conductor of length 1 meter placed at the right angle to the field when a current of 1 ampere is passing through the conductor. फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हमने लास्ट टॉपिक में फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की है एक कंडक्टर के अंदर जो कि प्रेजेंट था परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में, और जब इस कंडक्टर में से करंट पास करेगा तो इस पर फोर्स लगती है और ये कंडक्टर रेल्स के ऊपर मूव करने लगा था, जो कि परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था, जिसका फॉर्मूला ड्राइव किया था F इक्वल्स टू BIL साइन ऑफ अल्फ़ा। हमें ये बज़ाहिर लग रहा था कि ये फ़ोर्स इस कंडक्टर पे लगी है। एक्चुअली ये फ़ोर्स कंडक्टर के अंदर तमाम मूविंग चार्जेस पे लगी जो करंट फॉर्म कर रहे थे। तो हमने जितने भी चार्जेस मूव कर रहे थे कंडक्टर में से, हमने हर इंडिविजुअल चार्ज पर जितनी फोर्स लग रही थी उसका सम निकाला था इस रिलेशन F इक्वल्स टू BIL साइन अल्फ़ा से। हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है इन्हीं मूविंग चार्जेस के ऊपर जो मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो हर इंडिविजुअल चार्ज पर कितनी फोर्स लग रही होगी। नाउ दिस इज़ द नेट फोर्स ऑन ऑल द चार्जेस विच आर मूविंग थ्रू दिस कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ करंट आई। वी डिवाइड दिस फोर्स बाय टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो प्रेजेंट हैं इस वायर के अंदर। हमारे पास नेट फोर्स निकल आएगी ऑन इंडिविजुअल चार्ज इन विच इज़ मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने कंसीडर कर लिया है एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ कंडक्टर एज अ वायर, जिसकी हमने लेंथ ऑफ वायर सेगमेंट लिया है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर लिया है A, वॉल्यूम ऑफ वायर सेगमेंट हमने लिया है AL, विच
पॉजिटिव चार्जेस आर मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड प्रोड्यूसिंग करंट आई। जब ये वायर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होगा तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड होगी एंड चार्जेस मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, पैरेलल होगी। सो कैलकुलेट करें आप फोर्स। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम हमने लिया है n। टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इन वायर इक्वल्स टू NaL, जिसको हम इक्वेशन 1 कह दीजिए। चार्ज ऑन ईच वायर अगर आप स्मॉल q ले रहे हैं तो टोटल चार्ज डेल q दैट एग्जिट्स आउट ऑफ राइट फेस ऑफ वायर इज L। राइट फेस ऑफ वायर इज L, तो डेल q वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल चार्ज ऑन ईच कैरियर को मल्टीप्लाई कर दें आप किससे, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इन वायर। तो QNaL, जिसको आप इक्वेशन 2 कह दीजिए, वो आ गया आपका टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो कि आपके एग्जिट निकल रहे हैं राइट फेस में से वायर के। वेलोसिटी ऑफ ईच चार्ज आपने ले ली है v। लेट सपोज कर लीजिए डेल्टा टी बी द टाइम टेकन बाय कैरियर्स टू एंटर लेफ्ट फेस ऑफ वायर एंड लीव्स इट्स राइट फेस। सो डेल्टा टी, जिसको आप वेलोसिटी आप जो है कह रहे हैं डेल्टा टी इक्वल्स टू, ये टाइम टेकन है, इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो इक्वल्स टू डिस्टेंस आपके पास लेंथ ऑफ वायर के इक्वल दिया है आपने L के और वेलोसिटी से डिवाइड कर दिया, इसको आप इक्वेशन 3 कह दीजिए। करंट के जो फार्मूला होता है वो होता है डेल क्यू अपॉन डेल टी। अब आपके पास डेल क्यू का जो फार्मूला इक्वेशन 2 में QNaL डिवाइडेड बाय L अपॉन V जो कि डेल्टा टी की वैल्यू है, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी NaQV। L से L आपके पास कैंसिल हो गया। इसको आप इक्वेशन करंट के फार्मूले को इक्वेशन 4 कह दीजिए। नाउ फोर्स ऑन ऑल चार्जेस इन द लाइन सेगमेंट, आपके पास फॉर्मूला है F इक्वल्स टू IL क्रॉस B। आपके पास जो करंट का फॉर्मूला है, अगर मैं इस फोर्स के फॉर्मूले में करंट की वैल्यू को पुट करूं तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी NaQVL क्रॉस B, जिसको आप इक्वेशन 5 कह रहे हैं। नाउ V इंटू वैक्टर L इक्वल्स टू V यूनिट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ L, क्योंकि वेक्टर को आप रिप्लेस करते हैं मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से, तो L का जो वेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर दिया आपने यूनिट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ L। अब आपके पास जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही आपके पास जो है वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्शन के इक्वल, तो वेलोसिटी का जो यूनिट वेक्टर है वो इक्वल टू लेंथ ऑफ यूनिट वेक्टर। अब आपके पास VL जो है वो रिप्लेस कर दीजिए V इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ V इंटू L। सो आपके पास VL जो है वो क्या हो गया, यूनिट VL इक्वल्स टू वेक्टर ऑफ V इंटू L, जिसको आप इक्वेशन 6 कह दीजिए। अब इक्वेशन 6 को इक्वेशन 5 में रखिए, तो FL जो वेक्टर है फोर्स की वैल्यू उसकी NaQVL इंटू B। अब आप जो है ब्रैकेट से आप NaLQ बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा V क्रॉस B, जिसको आप इक्वेशन 7 कहते हैं। अब आपके पास ये वो फोर्स है जो टोटल कंडक्टर पे लग रही है ड्यू टू ऑल चार्जेस। अगर आप फोर्स निकालना चाहें ऑन अ सिंगल चार्ज कैरियर तो टोटल फोर्स को आप डिवाइड कर दीजिए टोटल नंबर ऑफ कैरियर्स से, तो F इक्वल्स टू FL अपॉन NaL। अब आपके पास NaLQV क्रॉस B डिवाइडेड बाय NaL, तो N से N कैंसिल, A से A, L से L कैंसिल, आपके पास आ गया Q इंटू V क्रॉस B विच इज़ द फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हम फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट का। रोटेट योर राइट हैंड फ्रॉम one vector to another vector in shorter angle than the direction of erected thumb will show you the direction of force. So magnitude of force आपके पास क्या आ जाएगा, F इक्वल्स टू Q
V क्रॉस B मीन्स F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन ऑफ अल्फ़ा। अब आपके पास अगर जो है वो एंगल इन दोनों के दरमियान वेलोसिटी एंड बी के दरमियान अगर एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा तो आपके पास मैक्सिमम फोर्स लगेगी चार्ज के ऊपर, और अगर इनके दरमियान एंगल 0 डिग्री होगा तो मिनिमम फोर्स लगेगी एक चार्ज के ऊपर। मींस अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर जाएगा, परपेंडिकुलर मूव कर रहा होगा फील्ड से, तो आपके पास मैक्सिमम फोर्स लगेगी उस चार्ज के ऊपर। अगर ये चार्ज पार्टिकल पैरेलल मूव कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में तो उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी। नाउ कमिंग टू टॉपिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इसी चार्ज पार्टिकल को इस फील्ड में मूव कराएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है और मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है। अब अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करवाएंगे तो हमें कंसिडर करनी पड़ेंगी दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आपके पास चार्ज के ऊपर जो फोर्स है लगेगी वो लगेगी F इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। और आपके पास जब ये चार्ज मूव करेगा फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट तो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और वो एक्सेलरेशन को हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ विच इज़ F इक्वल्स टू ma। सो एक्सेलरेशन आ जाएगी फोर्स अपॉन मास। फोर्स की वैल्यू होती है यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो F इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन m, which is the magnitude of acceleration when a charged particle is moving in an electric field. Now अगर यही चार्ज अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में जो है वो मूव कराएं तो आपने लास्ट ही लेक्चर में कैलकुलेट किया है एफ बी इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, जिसको आप इक्वेशन 3 कह दीजिए। अब अगर यही चार्ज पार्टिकल जो है जो आपने कंसिडर किया इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, अगर हम इसी अगर यही दोनों फील्ड्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही चार्ज पार्टिकल पे लग रही हों तो आपके पास टोटल फोर्स जो होगी वो सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, जिसे आप कहते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा F इक्वल्स टू क्यू ई plus q v cross b which is known as Lorentz force, and this is a formula of the Lorentz force। अब Lorentz force के लिए जब हम कंसिडर करते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करती है, मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स जो है वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। और अगर आपके पास मैग्नेटिक फोर्स के अंदर पार्टिकल को रखते हैं तो वो कर्व पाथ पे मूव करता है, और अगर कम्प्लीटली मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप पार्टिकल को रख देते हैं तो वो कर्व पाथ से वो सर्कुलर पाथ बन जाता है। तो आपके पास जो वर्क डन हो रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। क्योंकि कर्व पाथ में जब ये मूव कर रहा होता है तो फोर्स का वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर होता है डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर से, तो वर्क डन आपके पास जो है वो ज़ीरो निकलता है। मींस के मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप पार्टिकल को रखते हैं तो उसके ऊपर कोई वर्क डन नहीं हो रहा होता, मींस वो कोई काम नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कराती है, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स ही पार्टिकल के ऊपर वर्क डन कर रही होती है। अगर आपके पास दोनों फोर्सेस जो है वो चार्ज पार्टिकल पे लग रही हों तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करती है, मैग्नेटिक फोर्स इस पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करवाती है। So that's all for today. Thank you so much students for your cooperation.